students, a very warm welcome to all of you, my dear students. My name is Anubha Gaur and I am your chemistry master teacher at Vedantu. Hope you all know me well. Right, students, so just tell me what this class is all about. I know you all will be pretty excited about this कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है and ma'am is going to discuss the third session of the topic chemical bonding. So tell me, my students, are you all excited enough to know about that, ma'am? What is this coordinate covalent bonding? I was having certain doubts. Can you all clear those doubts? So students, do stay till the end of the class and I'm pretty sure most of your doubts are going to get solved. Otherwise, you can definitely put your doubts in the chat section, comment section, and ma'am will definitely see it and will make a special session called as doubt session with our mentee quiz. So will you all do it? Yes? So tell me, how's the Josh, my students? Are you all ready to know about ये कोवलेंट बॉन्डिंग? ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? In detail we will do it. Yes? Awesome. Give me a high five that ma'am, super ready. Let's rock the session. Okay, wonderful. Before starting, just some information that Vedantu has come up with a subscription course. Subscription is so like in trend, so we also thought of the same कि क्यों ना आपके लिए चीजों को easy किया जाए. Why can't you just try and then develop that trust and then go for all the courses? So subscription course क्या है students? That's a 1 month course of your respective class, 10th, 9th, CBSE, Maharashtra Board or ICSE. You can choose a 1 month subscription course in which we will give you everything in just 2699 if you will apply the teacher code that is AGPRO. तो जो 4000 का कोर्स था वो अब सिर्फ 2699 में मिलेगा. And क्या step follow करने हैं? Just select your grade 10th, select your target that is ICSE 2021. That's obvious. And you know syllabus थोड़ा reduce हो गया है. You might be worried that ma'am क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है. Ma'am will definitely make a video for the same. All right. तो subscription में second और third option इस तरीके से select करने हैं और उसमें क्या क्या मिलेगा जैसे मैंने बताया all the live classes by all the best master teachers. Hope you believe in that and personalized attention in the class. I am taking ICSE batches also and things are going pretty great. Okay, you can see the full recordings of the session as the number of the way you want. Okay, जितनी बार भी देखना you can see सारे के सारे सेशन के नोट्स भी मिलेंगे. You will get session assignments to solve. टेस्ट होगा और सारा का सारा करिकुलम. एंड द बेस्ट पार्ट दैट यू विल कम थ्रू इज कि आप अपने टीचर्स को, आप अपनी क्लास को चूज कर सकते हो. Isn't it wonderful that ma'am I want to plan my syllabus in this 1 month is like आज मैं मैथ्स कंप्लीट करके और साथ में एसएसटी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ एंड नेक्स्ट डे आई डू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट डे आई डू इंग्लिश विद द अदर सब्जेक्ट बायोलॉजी. You can manage your studies, you can manage your teachers. Isn't it wonderful? And make sure that you all are growing the way you want, and the course is going to be a wonderful journey for you and you'll find that soon. Okay, so do apply the teacher code, take it a shot at least. Okay students, I'll be happy because chemistry portion will be taken by your Anubha ma'am only. All right, so I hope you remember what we were doing in the previous session. Ma'am was talking about covalent bonding, है ना? Covalent bonding पढ़ा था डिटेल से and I have given you 2 questions to solve. So let me know कितने लोगों ने सॉल्व किया है, कितने लोगों ने सॉल्व किया है, जल्दी से बताओ. और अगर बता दिया तो देखेंगे कि कितने लोगों ने करेक्ट किया है. मैम हाउ वुड आई नो कि मैंने करेक्ट किया नहीं? बिकॉज मैम इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज CCl4 one is CO2 a polar compound, carbon dioxide, or is CCl4 carbon tetrachloride soluble in water? I have seen कि बहुत लोगों ने आंसर्स दिए हैं but some of you are still left with the confusion. तो एक बार क्लियर किया जाए. All right. Let's solve this student with your Anubha ma'am. Let's rock it. Let's rock it.
ऑल राइट, तो फर्स्ट की बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, वेदर इट्स अ पोलर एंड नॉन पोलर. सो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट एट ऑल पोलर कंपाउंड. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ पोलर कंपाउंड. पोलर मतलब जिसमें पोलारिटी है, पोलर मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन है. Okay, what does it mean and how do I define it that it's polar or non-polar? Students, I told you in the previous session कि जो मेरा सेंट्रल एटम है, मैं उससे जितने भी एटम कनेक्टेड है, आई लुक अपॉन दैट कि उसके साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. बॉन्ड का मूवमेंट नहीं, चार्ज का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट. तो होता क्या है, अमंग दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, oxygen is more electronegative atom, right? So oxygen is telling to carbon, I need the electron more than you. So these electrons are shifted more towards oxygen, and then shifting of electron cause slight negative charge on the oxygen, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, के इस कार्बन से इधर ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं. वंडरफुल. ओके, तो जब ये चार्ज सेपरेशन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई विल शो द डायरेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये डिफाइन कर रहा है पोलारिटी, पोलारिटी इन दिस बॉन्ड, के चार्ज सेपरेशन इन दिस बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर. ऐसे शो करते हैं हम, ये एरो का what we call it tail, और ये head, ये negative, ये positive. Same with this carbon oxygen, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे because oxygen is more electronegative. तो अब स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज सेपरेशन होता है, जो हम पढ़ रहे हैं, we call it dipole movement. dipole मतलब टू पोल्स, तो दो पोल्स जनरेट होते हैं ऑफ ऑपोजिट चार्ज. अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों पोल्स की डायरेक्शन है जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, and it's a vector quantity. मतलब मैग्नीट्यूड मैटर करता है, that how charge is separating, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, but this direction also matters a lot. That's a what a vector quantity. तो अगर डायरेक्शन मैटर करता है स्टूडेंट्स, that's a negative. एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. यानी कि सोचो, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, दोनों डायरेक्शन सेम, तो वो एडअप हो जाती है. वेक्टर कैसे आएगा, sum of vector addition will give you the magnitude, total magnitude of charge separation, कि वो polar है या नहीं है. Opposite एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, not at all polar. Same direction में होता तो all the vector is going to add up and gives you a final polarity, final dipole moment, some separation of charge, some direction of the poles of electron, और वो डिफाइन करता है कि वो पोलर है. तो अब ये क्लियर है, ये इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, एंड ओवरऑल दैट्स अ नॉन पोलर सब्सटेंस. ओके, ओवरऑल दैट्स अ नॉन पोलर सब्सटेंस. डिड यू गेट इट? hopefully this is clear. The next question was CCl4. CCl4 के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं. Is it soluble in water? Yes or no? तो कोई भी सब्सटेंस सोल्यूबल कब होगा वाटर में, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड. अगेन डिफरेंस इन द चार्ज हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में. इफ आई टॉक अबाउट CCl4, so it's like dissolve like. ओके स्टूडेंट्स, जो जैसा है वो उसी में डिसॉल्व करेगा, है ना. जैसे कि फ्रेंड्स जो होते हैं, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े बहुत शरारतें एक दूसरे से मिलती है, दैट्स व्हाई यू गाइज आर फ्रेंड्स. सेम विद दिस, CCl4 अगर पोलर होगा तो वो वाटर में डिसॉल्व होगा. पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो CCl4 की बात करूं स्टूडेंट्स, आई शुड नो दैट वेयर इज द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इज, के इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में है ना, पोलारिटी किस डायरेक्शन में है हर एक बॉन्ड की. तो कार्बन एंड क्लोरीन को कंपेयर करूं, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस डेल्टा मींस स्लाइट नेगेटिव चार्ज. ये बॉन्ड की डायरेक्शन, ऐसे CCl4 है, तो हर एक डायरेक्शन में मैं देख रही हूँ CCl4 कुछ इस तरीके से है. कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड का मूवमेंट है वो कार्बन टू क्लोरीन है. तो यहाँ अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, लोअर डायरेक्शन की, तो ओवरऑल जो मेरा डायपोल होगा, डायपोल मूवमेंट होगा, वो इन तीनों वेक्टर का एडिशन होगा, क्योंकि तीनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तीनों के वेक्टर को ऐड कर दो, एंड सपोज द रिजल्टेंट वेक्टर आई एम ड्रॉइंग इज, जस्ट अ सेकेंड, दिस. ओके, एंड इस CCl4 में रिजल्टेंट डायरेक्ट वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में. तो इनका ओवरऑल आया ये, और इस ऊपर वाले का ओवरऑल आया ये. तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब तो इजी है.
अब तो समझ आ जाना चाहिए कि कुछ नहीं, लेट मी जस्ट शो यू विद अनदर कलर, कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. तो ओवरऑल CCl4 is also a non-polar compound. It's also a non-polar compound. That's why it is not going to dissolve in water. Clear है students? It is not going to dissolve in water क्योंकि it's a non-polar. Non-polar will not dissolve into polar. Non-polar क्यों है? क्योंकि vector addition of these three CCl bond is equivalent in magnitude to this upward CCl bond. और एक दूसरे के वेक्टर के डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से दैट विल कैंसल आउट ईच अदर. ठीक है स्टूडेंट्स? So no net dipole moment. I have answered in terms of the whole solution. You can take it as a reference. You can download this presentation also. ठीक है, ये download कर सकते हो, which is great. तो अब और क्या सीखे? What is this coordinate covalent bonding? Hope your doubts are clear. Hope you are able to understand that in detail now. Fine students. So coordinate covalent bonding सीखते हैं in detail because that's pretty important. Why to wait? Let's start. What if ma'am is going to tell you that's a special kind of covalent bond? कैसे ma'am? कैसे? अभी बताते हैं. If I talk about hydrogen fluoride students, what kind of a bonding is this? Again, we did discuss that. If I take hydrogen and fluorine, fluorine is going to share its one electron with hydrogen and hydrogen is also going to share its one electron with fluorine. Okay, mutual sharing of electron. And then this is the bond dipole ka movement because hydrogen is electropositive, fluorine is electronegative, will attract the electron towards itself. It's more of like a polar compound, but कौन सा polar students? That's a बताओ, that's a polar covalent compound. ठीक है, ये एक polar covalent compound है. We did discuss the structure of H2 also in the previous session. Ma'am, water ऐसे होता है. It's like an inverted V shape, heart shape. तो आपको पता है ये जो डायपोल की मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में. ऐसा क्यों? Because oxygen is pretty electronegative, will attract these electrons. अब देखो ये डायपोल मोमेंट दोनों में इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो डायपोल आएगा वो कुछ एड अप हो जाएगा और ऐसे आएगा. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल. अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, राइट, पोलैरिटी है. देन वी डिड डिस्कस CO2, दैट्स अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. और दोनों में क्या हो रहा है स्टूडेंट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. दोनों शेयर करेंगे इक्वली. सो दैट्स मोर ऑफ mutual sharing of electrons. Mutual sharing of electrons. But अब आता है एक नया केस. वो नया केस क्या है? That certain kind of ions they form by mixed kind of bonding. एक से ज्यादा bonding होती है और एक special kind of bonding हम इसमें discuss करते हैं. So are you all ready to know about that? That how ammonium ion is different from ammonia in terms of bonding, and same in the case of hydronium ion. ठीक है, डिस्कस करेंगे. दैट्स अ केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टूडेंट्स. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड दैट इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. मतलब बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन टू एटम्स एन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से ही होगा, but those electrons were given completely by one atom and shared by both. Given by one called as donor atom and shared by both. Ma'am, like समझ नहीं आया? Definitely we'll discuss the example, don't worry. और ये जो coordinate covalent bonding है, इसको हम एक dative bond भी बोलते हैं, देने वाला. ठीक है, it's like one will give, other will take it, but in a case of sharing of electrons. Dative bond भी बोलते हैं apart from covalent bond. कैसे? देखो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. ओजोन इज वन ऑफ द सब्सटेंस, यू ऑलरेडी नो इट, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है. थोड़ा डिफरेंट केस है, जरा डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है. ऑलराइट, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर यू. एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, लेट मी ड्रॉ. एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6. 1 2 3 4 5 6. Second oxygen again 1 2 3 4 5 6. For the sake of difference मैंने दोनों में, एक में डॉट एक में क्रॉस शो कर दिया.
अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस 6 वाला इज लाइक शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ योर्स, आई विल बी सुपर स्टेबल. ये भी बोलेगा शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद मी, आई विल बी सुपर स्टेबल. इक्वल शेयरिंग, 2 2 शेयरिंग, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बनेंगे 2 बॉन्ड, दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. ये इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अब एक पुअर ऑक्सीजन इज कमिंग टुवर्ड्स इट. दिस ऑक्सीजन इज लाइक I am having 6 electron. I am in need of 2 electrons. Can anyone give me 2 electrons? Then this oxygen is like, okay, okay, तू भी क्या याद रखेगा? We have a special case of donation of electron. As in ये oxygen बोलेगा देख मैं तो stable हूँ. I had 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ माइन, 2 मैंने शेयर किए, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं सुपर स्टेबल हूँ, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा, बट मेरे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं. ओके, दीज आर दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग. सो ये बोलेगा चल मैं एक काम करता हूँ, ये है तो मेरे बट मैं तुझे शेयर करवा लेता हूँ अपने साथ. सो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस ऑक्सीजन को की तरफ दे देता है कि तू रख ले बट ये स्टिल मेरे हैं. सो दिस ऑक्सीजन इज व्हाट हैविंग अ काइंड ऑफ belongingness also कि वो है तो मेरे, तो उसका octet भी खराब नहीं हो रहा है, but these lone pair of electron does not participate in bonding, can be given to other atoms, can be shared to the other atom. ठीक है, तो it's like तुम्हारे पास 500 rupees है, you will tell to your friends कि चल अगर तुझे भी ये खाना है कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, अभी मैं दे देता हूँ, अभी बाद में कर लेंगे. It's like that kind of a thing. तो इलेक्ट्रॉन पेयर shared by this oxygen, ये है donor atom. Accepted by this oxygen atom, ये है acceptor atom, and this kind of bond we will show. This is called as a dative bonding. Dative मतलब वही, coordinate covalent. Covalent क्यों? क्योंकि है तो sharing, और coordinate क्यों? coordination हो रही है दोनों के बीच में कि ये इसको donate कर देगा. Donor atom and then acceptor atom. In this way you show this kind of a bonding. All right, समझ आया students? अब इसने दिया है you can show positive charge and negative charge also here. ठीक है, dative bond is clear. How ozone is making bond, I hope it makes sense. तो क्या क्या condition होती है, then we will discuss more example also. That one of the two atoms must have at least one lone pair of electrons. ठीक है, दोनों में से, जैसे मैंने बताया, in case of oxygen also, in case of water also, we are going to discuss, in case of ammonia also, they have a lone pair of electron which is not participate in the bonding, that can give its lone pair of electron to the upcoming atom which is in need of electron pair. All right, तो यही बात है, ये समझ आना चाहिए. That at least atom should be short of at least lone pair of electron. जो आने वाला है उसके पास एक pair of electron की shortage होनी चाहिए. Then only they will combine with each other. ठीक है, समझ आया? I hope समझ आ रहा है. जल्दी से मुझे बता दो. Then ma'am will draw more and more examples in front of you. Yeah, all right. Awesome. तो students, अब आता है ये famous example. We know the structure of ammonia like this. कैसे हमें पता है? Nitrogen is having 5 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5. Hydrogen is having 1 valence electron. They are going to combine with each other. कैसे combine करेंगे? एक दूसरा color ले लेते हैं to show a different color that will help के हम differentiate कर पाए. Hydrogen and oxygen is like we will bond with each other. Sorry, hydrogen and nitrogen, they'll also bond. Every hydrogen is stable by covalent bonding, है ना? Mutual sharing. Covalent bonding. आज थोड़ा ये पेन का कुछ तो issue create है, but हम काम चला लेंगे, है ना? Knowledge is more important for us rather than looking at these small things. तो ये सबके बीच में क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसा बताया था, नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ही पड़ा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लोन पेयर. लोन पेयर मतलब अकेला पड़ा है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट. 5 खुद के, 3 इन 3 हाइड्रोजन से, 5 and 3 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे, स्टेबल है. तो ये पुअर हाइड्रोजन आया इसके तरफ. दिस हाइड्रोजन इज H पॉजिटिव. हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, that also it had lost, and this hydrogen is having no electron and super unstable, and this hydrogen will say to nitrogen, nitrogen please help me, I need your help.
तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन इज लाइक ओके ओके, डोंट बी सैड, आई विल हेल्प यू बाय शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ माइन विद यू। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा और ऐसे आप बॉन्ड फॉर्मेशन शो करोगे। कैसे? लेट मी ड्रॉ फॉर यू। ये तो था मेरा NH3 एंड देन दिस हाइड्रोजन विल कम, ऐसे बॉन्ड शो कर दो, दैट्स इट। और ऐसे कि उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो कंप्लीटली इस हाइड्रोजन को उसने डोनेट कर दिया एंड दे आर प्रीटी मच स्टेबल नाउ। ओके, तो ये ओवरऑल मैं कैसे शो कर सकती हूँ दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग, दैट इज डेटिव बॉन्डिंग, लाइक दिस के पूरे स्ट्रक्चर पे टोटल 1 पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू दैट H पॉजिटिव। ऐसे शो करो। अब क्या होगा कि चारों के चारों ऑलमोस्ट सेम है, चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। यू कैन राइट देम ऑल टुगेदर एंड कैन डिफाइन द चार्ट दैट इज 1 पॉजिटिव। ठीक है, कि एक बार अगर उसने डोनेट कर दिए तो वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि चलो ठीक है, दैट्स फॉर आत्मनिर्भरता, दैट्स फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, माय वर्क इज डन। तो चारों हाइड्रोजन समवट सेम है अब, और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इज 1 पॉजिटिव, उस हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव था। या इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को दे दिए, हाइड्रोजन का चार्ज खत्म, नाइट्रोजन इज हैविंग दैट 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज इज 1 पॉजिटिव हियर। ठीक है, ओवरऑल चार्जेस को हटा के आप दिखा सकते हो 1 पॉजिटिव, अगर आप ये बॉन्ड ऐसे शो नहीं करना चाहते। राइट, डज इट मेक सेंस? होपफुली इट मेक सेंस। तो ये भी बहुत इजी होगा, फॉर्मेशन ऑफ H3O positive called as hydronium ion, and if you remember, acid show its acidic property due to this hydronium ion only। जैसे ही H positive एसिड जो रिलीज करेगा वो आता है पानी में, वो वाटर उसको एक्यूमुलेट कर देता है टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो पहले मेरा वाटर था HOH, इफ यू रिमेंबर वी ड्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम। ये हाइड्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और बाकी के ये जो 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोन पेयर की तरह एक्ट करते हैं, दे आर स्टिल ऑन दी ऑक्सीजन, दे आर स्टिल ऑन दी ऑक्सीजन, ऐसे ही पढ़े, ठीक है, ऐसे ही पढ़े। अब ये पुअर हाइड्रोजन इज कमिंग कहां से? एसिड वाला, डू रिमेंबर एसिड वाला केस, that acid में acid gives free H positive ions and then they are unstable and water will come and show its interaction with it और उसके साथ उसको stabilize करके hydronium ion बना देता है। So this oxygen is like, I am stable though I am having my 8 electrons, 6 and 2, 8 electrons stable, but poor hydrogen you need it, I will help you out, I will share my electron pair with you। तो हुआ क्या? Oxygen, hydrogen, hydrogen, then this dative bond, okay, overall charge कितना हो गया? 1 positive। Are you able to understand this? That this is pretty much clear that कैसे बनाया हमने। ये पूरे के पूरे पे ये बॉन्ड मत भी दिखाओ, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यू कैन शो एन इंटायर पॉजिटिव चार्ज, इसने इसको डोनेट कर दिया, दिस इज डेटिव बॉन्डिंग। बट जैसे बोला इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, दे ऑल आर सेम ओनली। कैसे ड्रॉ करेंगे? लेट मी क्लियर द स्पेस, जैसे कि आपको समझ आए, या जस्ट अ सेकेंड। देखो, डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड एंड देन दिस इज द हाइड्रोनियम आयन दैट इज यू आर गोइंग टू गेट। तो बताया था ना, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि वो जो ऑक्सीजन था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया था डेटिव बॉन्ड शो करने के लिए। अगर आप वो एरो वाला बॉन्ड नहीं दिखाते हो तो ओवरऑल चार्ज भी शो कर सकते हो, दैट दिस ऑक्सीजन, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो सेम तरीके से बिहेव करता है, और ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 1 पॉजिटिव, and you can show it. That's why it is, if you remember what we write it, H3O in total with 1 positive charge. This is your hydronium ion. Hope it makes sense, hope it is easy. तो ये जरा ट्राई करोगे, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। OH नेगेटिव आयन का लुईस स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट इन योर बुक, तो ये बहुत जरूरी है पढ़ना। कि H2O तो था मेरा वाटर, ये देखो ड्रॉ किया था, कहाँ ड्रॉ किया था? यहाँ, कि H2O तो था मेरा वाटर, अगर एक H जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा? H पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, आई मीन नेगेटिव चार्ज शो करेगा, राइट। इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ इट फॉर यू ऑल्सो। ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा? मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ H पॉजिटिव के फॉर्म में,
ठीक है, सॉरी, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं, ये H बोलेगा मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दूंगा तो भी मैं स्टेबल होऊंगा, और H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन था इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से इसके पास वापस आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंड देन दिस नेगेटिव चार्ज, ये है इसके पास। ठीक है, 6, एक हाइड्रोजन के साथ 7 और एक नेगेटिव चार्ज 8, समवट स्टेबल बट आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। फाइन, H पॉजिटिव निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गए, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज एंड देन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है विद अ नेगेटिव चार्ज, राइट? दिस इज व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर and 1 negative charge overall. Does it makes any sense? Hopefully that's how your water ionize to give H positive and this OH negative. That's what I told you कि ये जो एक हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक ये ऑक्सीजन का ही था और एक इसने हाइड्रोजन ने अपना दे दिया, तो हाइड्रोजन इज हैविंग सॉरी ऑक्सीजन इज हैविंग हियर 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन इन अ पेयर, 1 2 3 4 5 6 with hydrogen and overall negative charge, और ये H निकल गया H पॉजिटिव की फॉर्म में, है ना स्टूडेंट्स? ये बेचारा बेचारा नहीं है, इसको आयोनाइजेशन बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन। ओके, दिस इज गिविंग योर पॉजिटिव H पॉजिटिव। ऑल राइट, ये भी क्लियर हो गया, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये जो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से H पॉजिटिव निकला, जैसे आपने सेल्फ आयोनाइजेशन किया वाटर का, जो H पॉजिटिव निकला दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद दैट वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन। मतलब जब आप सेल्फ आयोनाइजेशन पढ़ते हो किसी भी सब्सटेंस को, सेल्फ आयोनाइजेशन मीन्स व्हेन यू टेक अ सब्सटेंस एंड इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस टू फर्दर रिएक्ट, जैसे वाटर ने डिसोसिएट किया H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ऐसे बार बार डिसोसिएट करके अगेन दे विल कंबाइन एंड गिव एंड जनरेट मोर एंड मोर आयंस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो बना था उस रिएक्शन में अगेन गोइंग टू कंबाइन विद अदर वाटर मॉलिक्यूल टू गिव हाइड्रोनियम आयंस। इट्स समवट इम्पॉर्टेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स ये समझ आए दैट हाउ योर टू वाटर मॉलिक्यूल इज ओवरऑल मेकिंग दिस। कैसे? ये एक वाटर था, ये डिसोसिएट हुआ पहले H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, जैसा बताया था। जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया, जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया, दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद दिस H पॉजिटिव and gives and it will give you hydronium ion, hydronium ion, right students? That will give you hydronium ion, और साथ में क्या बच गया? OH negative। साथ में मेरा बचा, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन। व्हेन आई हैव टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, दैट हाउ टू मॉलिक्यूल एक के डिसोसिएट होने से वो दूसरा उसके साथ कंबाइन करेगा। Hope you're able to understand this. This is not at all difficult, which looks difficult to us. तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल करवाए उसके अलावा, अब टू डू होम क्या है, उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल देना है मुझे, ठीक है? दूसरा, कैन मेटल ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और डिटेल में आप हायर क्लासेस में भी पढ़ते हो। तो आई होप होमवर्क इज क्लियर, आई होप आपको समझ आए जो भी मैम ने पढ़ाया, दैट what we did discuss about coordinate bonding and its detailed example, that how do they do it. And next session hoga students doubt discussion, so please put your doubt in the comment section so that I can see it and will make a doubt session with Menti quiz. ठीक है, VSET का एग्जाम दो, अगर नहीं दिया that's a scholarship test and you can also join Vedantu with 100%, 80%, 90% scholarship just like Siddharth, Nitish and Himanshu. Sunday 10 a.m. test hota hai, so you can easily do it at the comfort of your home for absolutely free. All right, so just do it. Do enroll for Pro Subscription. It is going to be an awesome journey for you. That I make sure सारे step clear है। ये अनुभा मैम का जो टीचर कोड है वो अप्लाई करो, AGPRO, the same course you will get for 2699. Right? अपना स्टेप 1 क्या है? अपनी ग्रेड सेलेक्ट करो, अपना बोर्ड सेलेक्ट करो और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो एंड एवरीथिंग विल बी अंडर योर नेम। यू कैन चूज योर स्केड्यूल।
सो स्टूडेंट्स, होप आप सबको मजा आया हो। मजा में रहना है। ओके, तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे, रिड्यूस सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लीज हिट अ लाइक बटन, share it to your friends so that they can also come and see, and subscribe to our channel for all the notification by hitting that bell icon. ठीक है, सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। अगला सेशन मिस मत करना क्योंकि डाउट्स एंड क्विज भी होंगे। ओके, होप आप सबको समझ आया, होप मजा आया, होप आप सब घर में रह रहे हैं। प्लीज स्टे एट होम, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, बट वी विल मेक श्योर, Vedantu will make sure that your studies won't suffer at all. So take care of yourself and keep studying with Vedantu. Bye bye, students.